Good afternoon. My name is Datta Manoj Sonani. I am from third year electrical department. Today we learn about the CPP models of PIC18 microcontroller. These are the contents timer required for the CPP applications and the capture mode. In that capture mode, we learn about the how to measure the period of that pulse. In compare mode, how to generate the waveforms, and fourth point is PWM, that is pulse width modulations, and how to control the speed of DC motor by using pulse width modulations. Introduction. First C for capture, and second C for compare, and P for pulse width modulation. In capture mode, very simple concept is there. We have to we know that the about timers, timer 0, timer 1, timer 2, and timer 3. For the capture mode, we use the timer 1. This is 16-bit timers. Very simple concept is in the capture mode, the content of that timers is captured into that the register CPP are registers, and in compare mode is generate an interrupt or change on the output pin when the timer 1 contents is matched to the comparison value, that is CPP-RL. And PWM mode, how to generate the pulse and how to control the speed of DC motor, also how to control intensity of bulb. Timer required for the CPP application, that is for capture mode, we can use timer 1, also timer 3, and for compare mode, timer 1 or timer 3 is also there. But third is PWM mode, only timer 2 is used for that. We know that about timer 1 and timer 3 is the 16-bit timers which having the CPP applications. Same like that, timer 2 is 8-bit timers, but one additional register, that is period register. This register is used for the PWM mode for the period of the pulse, that is frequency of that pulse. This is also helpful for the PWM mode to vary the waveforms. In our PIC18 458 microcontroller, only one CPP1 and eCPP register is there, but depending upon the family members of PIC18 has CPP model is very different: CPP1, CPP2, CPP3, so on that. But each CPP models have three registers. First is CPP con register, that is 8-bit register to select the one model among that three, that is capture, compare, and PWM mode. And other two register is CPP-RL register and CPP-RH register. This is 16-bit register. These two registers used for the capture and compare mode. And CPP RL register also used for the PWM mode, but this is 8-bit 8-bit register. This two register is not used for at a one time for capture, compare, and PWM mode. One register, only one mode you can select for that. This is CPP con register. This first 2-bit is not used, but DC1 DC1B1 and DCB2 register for the PWM mode for the duty cycle of fraction point. I will discuss for next slide. This 4-bit is used for the selecting the mode of any that CPP. Suppose the this 2-bit, we can easily understand which bit is selected. Suppose 101 bit is there, we can easily understood this is capture mode. And उसके बाद सपोज यहाँ पे 10 रजिस्टर है, तो हम इजीली अंडरस्टूड कर सकते हैं कि वी हैव टू सेलेक्ट द कंपेयर मोड. And
suppose 1 is there, then PWM mode is you can selected. कैप्चर मोड इजीली यहाँ पे हम समझते हैं कि कैप्चर मोड यानी क्या है। सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ कि कैमरा, हमारा जो मोबाइल का कैमरा है ना, वो कैप्चर, उसमें एक कैप्चर बटन रहता है। when you click that capture buttons, we get the any image, and this image is stored into the memory. Like that concept is there when we the external event is capture by CPP pin. After that, the content of this timer register is saved into this register, and this CPP IF register, interrupt register is raised, and this prescaler is used for यहाँ क्या है। सपोज हमने 1/1 का प्रीस्केलर सेलेक्ट किया, तो क्या है कि जब एक पल्स आती है तो इसके कंटेंट जो है टाइमर 1 और टाइमर H और टाइमर L के जो कंटेंट है इसमें एक टाइम सेव हो जाते हैं। एंड सपोज 1/4 का स्प्री स्केलर यूज़ किया, तो क्या है कि जब 4 साइकिल आते उसके बाद जो कंटेंट है टाइमर के जो इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं, सॉरी स्टोर हो जाते हैं। बट एज डिटेक्ट क्या है, यहाँ हमने देखा था जो ये 3 बिट है ये किस लिए यूज किए जाते हैं कि एवरी फॉलिंग एज, एवरी राइजिंग एज, और एवरी 4th राइजिंग एज, और एवरी 16th राइजिंग एज। इसका मतलब है कि सपोज 1/1 का तुमने सेलेक्ट किया, तो वो कैसे पता चलता है कि क्या है कि जब फर्स्ट राइजिंग है तो 1/1 राइजिंग हो गया फर्स्ट में, तो टाइमर 1 के जो कंटेंट है इसमें स्टोर हो जाते हैं, और ये जो इंटरफ्लैग रजिस्टर है वो सेट हो जाता है। इससे इजीली कंसेप्ट है। और कैप्चर मोड में हमें जो CPP1 पिन है वो हमें इनपुट पिन में सेलेक्ट करनी पड़ती है। स्टेप फॉर द प्रोग्रामिंग ऑफ द कैप्चर मोड, इनिशियली क्या करना पड़ता है, CPP1 जो रजिस्टर है उसमें हमें कौन सा मोड है, कैप्चर है, कंपेयर है और PWM, वो हमें सेलेक्ट करना। आफ्टर दैट वी मेक द CPP1 पिन इज इनपुट फॉर मेक, उसको सेलेक्ट करना पड़ता है कि इनपुट पिन है। और इनिशियलाइज टाइमर 3 रजिस्टर है टू सेलेक्ट फॉर टाइमर 1 और टाइमर 3। हमने देखा है कि टाइमर 3 रजिस्टर में जो एक बिट है उसमें हम सेलेक्ट करते हैं कि वो कैप्चर मोड में टाइमर 1 में कैप्चर करना है, टाइमर 3 में कैप्चर करना है। और आफ्टर दैट रीड द कंटेंट ऑफ टाइमर 1 रजिस्टर वैल्यू फॉर द फर्स्ट राइजिंग, वी विल डिस्कस इन प्रोग्राम। And after 5 step is read the timer 1 timer 3 register for the second rising, and after that we subtract that 2 values। यहाँ पे हम एक प्रोग्राम देखते हैं जिसमें हाउ टू मेजर द पीरियड। क्या है फर्स्ट में क्या है कि जो 05 वैल्यू है मूव L 05 जो हमने CPP1 कॉन रजिस्टर में स्टोर की है, इसका मतलब क्या है, हमने वहाँ पे कैप्चर मोड में सेलेक्ट किया है पर राइजिंग एज के लिए सेलेक्ट किया है। आप जी इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके देख सकते हैं CPP1 कॉन का रजिस्टर में। और उसके बाद क्या है, जो टाइमर 3 कॉन रजिस्टर है वो भी सेलेक्ट करना पड़ता है उसके, बिकॉज ऑफ टाइमर 1 इज यूज फॉर दैट कैप्चर मोड, इसके लिए हमें ये टाइमर 3 भी रजिस्टर यूज करना पड़ता है। और आफ्टर दैट वी स्टोर द जीरो वैल्यू इन टिकॉन रजिस्टर। हमने यहाँ पे फर्स्ट क्या किया कि टाइमर 1 जो है कैप्चर मोड के लिए सेलेक्ट किया, बट टाइमर 1 में इंटरनल क्लॉक और प्रीस्केलर भी हमें यूज करना पड़ता है कैप्चर मोड के लिए। हमने यहाँ क्या किया है कि 1/1 का प्रीस्केलर यूज किया है।
आपको मैंने अभी बताया कि व्हाट इज अबाउट स्पीड स्केलर। उसके बाद जो यहाँ पे क्या क्या कि सिर्फ जो हमने जो पीरियड मेजर किए उसको हमें एक दो पोर्ट में आउटपुट के लिए लेके जाने का है। इसके लिए जो ट्रिस बी क्लियर एफ ट्रिस बी यानी मेक टू पोर्ट बी एज आउटपुट पोर्ट एंड ऑल्सो फॉर द पोर्ट डी क्लियर एफ ट्रिस डी टू मेक द पोर्ट डी एज आउटपुट। और main point is to set the trace C CPP1 to make the input pin of CPP1. These two registers is also for the store the value move LW00। फर्स्टली यहाँ पे इन्होंने 0 किया है क्योंकि जो सपोज मेमोरी है जो वो 0 पे है। और टाइमर 1 और टाइमर 2 इज also firstly clear यहाँ पे किया है। after that this CPP1 IF register to first clear because after the first pulse is come that content of timer is stored into that CPP1 CPP-RL and H value। दिस यहाँ पे लूप तैयार किया उन्होंने। क्या क्या है कि जो BTFSS जो इंस्ट्रक्शन है दैट इज़ फॉर द बिट टेस्ट करना पड़ता है जो करते हैं। जो सपोज यहाँ पे 1 आया तो क्या करता है वो जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसको स्किप करके अगला इंस्ट्रक्शन वो रीड करता है। सपोज यहाँ पे फ़िलहाल तो 0 ही है। उसके बाद सपोज यहाँ पे उन्होंने क्या किया 1 आ गया यानी हमारा जो फर्स्ट एज है वो 1 आ गया सपोज यहाँ। तो क्या करता है कि जो यहाँ तो सेट हो गया इसका मतलब जो CPP-IF है वो राइज हो गया और ये जो BRA का इंस्ट्रक्शन हो वो स्किप करता है और अगला वाला इंस्ट्रक्शन रीड करता है। अगला वाला इंस्ट्रक्शन क्या है ये उन्होंने टाइमर को स्टार्ट किया है। टाइमर को स्टार्ट किया तो उसके बाद का इंस्ट्रक्शन क्या है BCF PRF को उन्होंने क्लियर किया फॉर द नेक्स्ट। पहले तो हमने यहाँ पे क्या किया 1 आ गया इसका मतलब जो टाइमर के 0 है वो इसमें चले गए हैं यहाँ पे। फर्स्टली वो इसमें चले गए इसके लिए वो उन्होंने क्या किया इसको क्लियर किया है फॉर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए दैट इज़ फर्स्ट राइजिंग एज आ गया पहला वाला। बाद में वही रिपीट किया है फॉर द नेक्स्ट साइकिल के लिए और वो दूसरा भी आ गया। तो उसके बाद यह लास्ट 2 स्टेप में क्या किया है मूव FF और टाइमर L और पोर्ट B। इसका जो हमने देखा इस डायग्राम में कि जो कंटेंट ऑफ टाइमर इज इनटू स्टोर इनटू दिस 2 रजिस्टर। ओनली डिफरेंट क्या है उन्होंने क्या किया कि पोर्ट B में जो है टाइमर के जो वैल्यू उन्होंने आउटपुट के लिए दे दिए और सेम एज लाइक दैट ये क्या करते हैं कि जो पीरियड को मेजर करते। सपोज पहले राइज हो गया इसका मतलब फर्स्ट राइजिंग आ गया एक हम उसको क्या कर सकते हैं कि एक राइजिंग हो गया तो एक पीरियड आ गया सपोज और बाद में सेकंड राइजिंग आ गई तो दैट सेकंड राइजिंग को भी मेजर करते और वो स्टोर कहाँ होता है पोर्ट B में। हम इजीली पोर्ट B में जाके हम चेक करते कि कितना पीरियड हो गया था। बाद में हम कंपेयर मोड को देखेंगे। कंपेयर मोड भी सेम ही है पर क्या है अब कंपेयर मोड में क्या है कि हमें 2 वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है और जैसे हमने पीरियड को मेजर किया वैसे ही यहाँ पे क्या करना पड़ता है कंपेयर मोड में दो वैल्यू रहते हैं और 2 वैल्यू के सब मतलब 2 वैल्यू के कंपेयर होने के बाद हमको पल्स भी जनरेट करना आता है। आई विल डिस्कस दैट। सपोज हाँ सपोज यहाँ 10 है। आप क्या करते हैं कि फर्स्ट यहाँ पे इन 2 रजिस्टर में हमें वैल्यू स्टोर करनी पड़ती है। सपोज हमने यहाँ 10 स्टोर कर दी और टाइमर को 0 है स्टार्ट कर लिया। टाइमर 1 आता है टाइमर 1 होता है 2 होता है और 3 के बाद 10 हो गया। 10 होने के बाद क्या होता है जो ये रजिस्टर है ये सेट हो जाता है। सेट होने के बाद और दूसरा है कि
यहाँ पे आउटपुट चला जाता है। सेट होने के बाद यहाँ पे भी 4 पॉइंट दिए हैं। सपोज सेट होने के बाद ड्राइव हाई पिन, दैट इज CPP1 को हम हाई में ले जा सकते हैं और लो में ले जा सकते हैं, टॉगल भी कर सकते हैं और अनचेंज भी कर सकते हैं। ये अनचेंज है ना, वो अनचेंज फॉर स्पेशल ट्रिगर के यूज किया जाता है, जो CPP1 में ज़्यादा नहीं किया। CPP1 में क्या है, सिर्फ जब ये अफेक्टेड जो है, जो समझो अनअफेक्टेड हमने सेलेक्ट किया, तो क्या है कि स्पेशल ट्रिगर में जाके टाइमर जो है वो रीसेट हो जाता है ऑटोमेटिकली। और कंपेयर में हमें जो RCB 2 पिन है ना, वो हमें आउटपुट के लिए सेलेक्ट करनी पड़ती है। सपोज 10 आ गया, उसके बाद क्या होता है कि आउटपुट में हमने ड्राइव हाई के लिए किया, तो फर्स्टली यहाँ पे क्या है, हमारी जो साइकिल है वो 0 पे है, और ये कंपेयर हो गया तो इसके बाद क्या होता है, वो हाई के लिए जाती है, बरोबर 0 टू हाई गई, चली गई। और उसके बाद क्या होता है, टाइमर रीसेट हो गया, फिर से टाइमर चालू होता है, फिर से 10 के लिए हाई हाई हो जाती है, बाद में लो हो जाती है, बाद में हाई हो जाती है। ऐसे कर से हम क्या करते हैं, इसको पल्स तैयार कर सकते हैं। हम कंपेयर के लिए एक प्रोग्राम देखते हैं। सेम है, कंपेयर में क्या है कि CPP1 कॉन रजिस्टर के भी हमें यूज़ करना पड़ता है फॉर सिलेक्टिंग द कंपेयर मोड, और टाइमर 3 भी यूज़ करना पड़ता है। और इनिशियली हाँ, ये यहाँ पे सिर्फ चेंज क्या है कि इनिशियली इस दो में वैल्यू हमें सेलेक्ट करनी पड़ती है, एंड देन आफ्टर दैट टू मेक द CPP1 कॉन एज द आउटपुट पिन, बट हियर बट इन कैप्चर मोड वी सेलेक्ट फॉर द इनपुट पिन, or initialize the timer 1 or timer 3 as we select that, and that after that we start the timer 1, and to monitor the CPP1 IF flag register when जो 10 वैल्यू हमने यहाँ पे रखी थी, जो सेम हो गई, इसके बाद ये राइज होता है और हमें आउटपुट 1 मिल जाता है। हाँ, आप सपोज यहाँ क्या किया है उन्होंने कि मूव LW में क्या है, 2 रखी, इसका मतलब CPP1 कॉन में 2 चली गई, इसका मतलब वो कंपेयर मोड में रजिस्टर आ गया है, और वो टॉगल के लिए हो गया। इसका मतलब जो मैच होती है 2 वैल्यू, तो वो क्या करता है कि टॉगल करता है, आउटपुट पिन को टॉगल करता है, 0 है तो 1 करता है, 1 है तो 0 करता है। आफ्टर दैट 42 is selected for the timer 3 con. In timer 3 con, why the function of 42 is timer 3 is select for the compare mode, and 1 by 1 prescaler is used for that. BCF trace C, that is this pin is to select for the output pin in the in pin diagram. BCF trace C T1, that's pulse, this is input, we select for the input. ये पिन हमारे ऑसिलेशन, दैट इज फॉर पल्स के लिए, ये इनपुट के लिए सेलेक्ट किए। हाँ, यहाँ पे देखो हमने क्या किया, अब CPP1 RL में हमने 10 लिए है, एक जो क्या किया 10 हमने सेलेक्ट किए, और H में 0 सेलेक्ट किए। आफ्टर दैट वी क्लियर द टाइमर H एंड टाइमर L वैल्यू। बाद में हमने जो इंटर फ्लैग रजिस्टर है ना CPP1 का, उसको हमने क्लियर कर लिया। उसके बाद हमने टाइमर को ऑन किया, तो टाइमर क्या हो गया, 0 से स्टार्ट हो गया, 0 1 2 ऐसे करके आ गया। जब टाइमर ये भी एल की वैल्यू 10 होती है और इसकी भी 10 हो गई, तो ये 1 हो गए सेट होता है, और जो हमने आउटपुट के लिए पिन लगाई है वह क्या होता है, टॉगल हो जाती है। जो टॉगल होने के बाद पल्स तैयार हो गई, सपोज फर्स्टली वो 0 है, टॉगल हो गया, 0 का 1 हो गया, फिर से वो उतने टाइम के लिए चलती है, दैट इज़ फॉर 10 पल्स के लिए चलती है, और बाद में 1 का 0 हो गया, दैट इज़ सेम इज एज लाइक दैट। ये क्या करता है कि पल्स तैयार करता है। आफ्टर दैट वी स्टॉप द टाइमर एंड गो टू ओवर अगेन, ये 0 हो जाती है, जो ये यहाँ क्या हो गया, क्लियर द टाइमर, यहाँ क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, और ये यहाँ पे टाइमर स्टार्ट किया तो क्या हो गया, फिर से 0 से वो चालू करता है 10 के लिए। ऐसे हम वेव फॉर्म जनरेट कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द, आप क्या करें कि ये इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ कर रही है फॉर कंट्रोलिंग द DC मोटर स्पीड।
PWM mode for the pulse width modulation mode. Another feature, that is pulse width modulation feature, is there. PWM mode is widely used for industrial controls for the DC motor in creating the pulses with variable width for. अब क्या है कि यहाँ सपोज हमको जो PWM मोड सेलेक्ट किया, तो दो फैक्टर यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर कंट्रोलिंग द DC मोटर. फर्स्ट इज पीरियड ऑफ द पल्स, दैट इज पीरियड मीन्स क्या है, टू कंप्लीट वन साइकिल, दैट इज वन पीरियड. और ड्यूटी साइकिल क्या है, टी ऑन डिवाइड बाय टोटल टाइम, बट ड्यूटी साइकिल इज रिलेटेड टू टी ऑन टाइम. यह बहुत अच्छा कंसेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट. टू सेट द ड्यूटी साइकिल CPP मॉड्यूल यूज द 10-bit रजिस्टर. बट 10 बिट कहाँ से आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हमने CPP-REL रजिस्टर देखा, वो 8 बिट का है, और CPP-REL-H ये 8 बिट का है. ये दोनों मिला के 60 बिट होता है, और जो हमने कैप्चर और कंपेयर मोड में यूज़ किया है. बट ये दो बिट कहाँ से आ गए, जो कि हमने CPP कॉन रजिस्टर में देखे थे, जो स्टार्टिंग के, जो कि ड्यूटी साइकिल के फ्रैक्शन के लिए हमने यूज किए थे, वो 2 बिट, और जो CPP-L के जो 8 बिट है, ऐसे मिला के हम 10 बिट का CPP-1 फॉर ड्यूटी साइकिल के हम यूज़ करते हैं. हाँ, यहाँ पे T2 कॉन रजिस्टर यूज़ करना पड़ता है हमें फॉर दैट PWM मोड. D7 bit is not used for that. And other this other जो 3 बिट है, 4 बिट है, जो हमने यूज़ किए फॉर द, दिस इज़ फॉर पोस्ट स्केलर वैल्यू, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. और D2 जो बिट है, वो हम यूज़ करते हैं फॉर द टी ऑन टाइमर के लिए. और जो बाकी के जो है 2 है, वो हमें यूज़ करना पड़ता है फॉर द प्री स्केलर. इन आवर प्रोग्राम वी सेलेक्ट फॉर द 16 प्री स्केलर, दैट इज़ 1:x, दैट इज़ जो x है, इसका मतलब ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है. सपोज हमने 1 0 रख लिया. और CPP-1 कॉन रेजिस्टेंस इज यू नो दैट फॉर सेलेक्टिंग दैट दिस टू. नाउ अब ये जो 2 बिट है, ये हमें यूज़ करना पड़ता है फॉर द ड्यूटी साइकिल फ्रैक्शन के लिए. ये इसका ये तो हमने देख लिया है कि दिस 4 बिट्स इज यूज फॉर दैट टू सेलेक्टिंग अमंग दैट 3 मोड. अब जो फ्रैक्शन है, मैंने आप तक बोला कि डेसिमल पॉइंट फ्रैक्शन है ड्यूटी साइकिल की, वो क्या है. सपोज ड्यूटी साइकिल है 10.0, यानी 10% की ड्यूटी साइकिल है, और 0.0 है, 0 है, तो ये 2 0 0 हो गई. ये कुछ इंपॉर्टेंट है. सपोज 10.25 है, तो वो 25 कहाँ आ जाएंगे, 25 जो है कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे इस 2 बिट में. सपोज 10.25 है, तो क्या सेलेक्ट होगा ऑटोमेटिकली, ये 0 1 सेलेक्ट हो जाएगा. और 10.50 है, तो 1 0 हो गया. और 10.75 है, यहाँ पॉइंट देना भूल गया, सॉरी. 1 और 1 चला जाएगा, और ड्यूटी साइकिल होगी 10.75 की. बट वो 10 का स्टोर होता है, वो स्टोर होता है CPP-REL रजिस्टर्स, दैट इज दिस रजिस्टर यूज फॉर द स्टोर इंटीजर पार्ट ऑफ ड्यूटी साइकिल. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट. नाउ लिसनिंग केयरफुली. इन PWM मोड वी यूज फॉर 2 कंपेयर मोड. क्या करेंगे, पहले CPP-REL और टाइमर 2 में कंपेयर करेंगे, और बाद में दूसरा कंपेयर करेंगे टाइमर 2 एंड पीरियड 2 के लिए. ये दोनों सेलेक्ट क्यों करना पड़ता है, ये जो CPP-REL है, ये रिलेटेड टू हमारे ड्यूटी साइकिल है, उस पर डिपेंड रहता है. और PR2 जो ये हमें पीरियड के लिए, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पल्स, उसके लिए हमें ये 2 सेलेक्ट करने पड़ते हैं. सपोज हमें ड्यूटी साइकिल चेंज करनी है, तो हमें इसकी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी. और हमें पीरियड चेंज करना है, और ड्यूटी साइकिल चेंज यानी क्या है,
हमें टी ऑन चेंज करना पड़े, टी ऑन, सपोज हमें टी ऑन चेंज करना है, ज़्यादा करना है तो इसमें ज़्यादा वैल्यू रहेगी, कम करना है इसमें कम वैल्यू रहेगी, ऐसा। और पीरियड, सपोज पीरियड हमें चेंज करना है तो पीरियड चेंज करने के लिए हमें PR2 की जो वैल्यू है ये हमें चेंज करनी पड़ती है, इसकी वैल्यू चेंज करनी पड़ती है। सपोज अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे हमने 60 लिया और इसमें पीरियड रेजिस्टेंस में हमने 100 लिया, तो और टाइमर चालू किया, वो 0 से स्टार्ट हो जाएगा, 0 से स्टार्ट होते होते वो स्टिक 60 पे आ गया, 60 पे आ गया। तो 0 से स्टार्ट होके होके उस पहले तो क्या है, ये एक पार्ट भूल गया मैं, ये जो PWM मोड के लिए जो जो स्टार्ट में हमें जो हाई में सेट करना पड़ता है, जो यहाँ CPP1 जो आउटपुट के लिए रहती है ना, वो में हमें वो ऑटोमेटिकली हाई में जाती है। कब जाती है, जब जो कंटेंट ऑफ CPPR के है ना वो जब हाई में चले जाते हैं, हाई में। यह देखो हमने यहाँ पे जो लाइन दी गई है ना, इसके लिए यहाँ से होता है जो कंटेंट है हाई के जब हाई में चले जाते हैं ऑटोमेटिकली सेट होके 1 होती है। ओके, यहाँ तो हाई तक तो आ गई, तो हमारे हाई के लिए 60 हो गई, यानी जो 60 पल्स हो गए तो हमारे साइकिल 60 के आ गए पल्स ऑन हो गए, वो टाइम हो गया, ऑन टाइम हो गया, अब 60 पे आ गई। और बाद में PR2 क्या टाइमर जो 60 के होने के बाद 100 पर आता है, तो 100 पे आने के बाद, 100 पे आने के बाद वो क्या है कि जो पीरियड है, पीरियड ख़त्म हो जाता है उसका, यानी ड्यूटी साइकिल भी हो गई और पीरियड भी हो गया, और ऑटोमेटिकली टाइमर जो है वो 0 पे सेट हो जाता है। इसका मतलब वो फिर से 0 से स्टार्ट होता है, फिर से 0 से स्टार्ट हो गया। और ये जो इसमें यह दिखा है ना, वो टाइमर 2 में और PR में 2 जो करते हैं ना, वो हमें से टी पीरियड रहता है, और जो CPPR में रहता है वो ड्यूटी साइकिल रहती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। और यह वन एग्जांपल है, दिस इज़ फॉर PR2 रजिस्टर, FOS is that is oscillation frequency divided by F pulse width modulation frequency into the 4 into n and -1 into 4 क्यों किया जाता है, the timer is use the 4th oscillation, and second is n for the prescaler and -1. Suppose one example we can take, सपोज क्या क्या कि ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी 20 मेगाहर्ट्ज़ की है, और हमने जो फ्रीक्वेंसी है जो हमें जनरेट करनी है वो हमने 5 किलो हर्ट्ज़ की जनरेट करनी है, एंड वी कंसिडर द स्प्री स्केलर इज 60, देन पीरियड रजिस्टर्स नाउ पुट द वैल्यू ऑफ दैट ऑल, पीरियड रेजिस्टेंस 61 का आ गया, 61 का पीरियड आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि पीरियड जो ऑन टाइम और ऑफ टाइम का है वो पूरा 61 का आ गया है। ये राउंड फिगर लेके मैं 61 लिया है। इफ़ यू वांट टू 10% ड्यूटी साइकिल, सपोज ये पूरा पीरियड में के जो 10% ड्यूटी साइकिल चाहिए, इसका मतलब 10% हमें ऑन चाहिए, तो ऑन चाहिए, इसका मतलब क्या है 10% ऑफ 61, इसका आ गया 6 आ गया। तो क्या है, जो 61 में जो साइकिल है उसमें 6 साइकिल हमें ऑन के लिए चाहिए। सपोज मैं इजीली बता रहा हूँ कि हमें 6 ऑन के लिए चाहिए। अब प्रोग्राम कैसा होगा मैं दिखाता हूँ। हाँ, प्रोग्राम है, हमें ये C में देखेंगे हम। उसके लिए क्या है कि जो हमारे जो CPP1 जो पिन है हमें आउटपुट के लिए जो लगानी पड़ती है, और उसमें हम क्या we can connect the any motors, bulb, everything you can connect. After that we select the CPP1 con. Why you select? For selecting the pulse width model 1 mode, that is हमने अब ये PW में सेलेक्ट किया है। जो ये 2 1 रखे वो क्यों रखे कि हमने देखे थे जो फर्स्ट 2 1 हो गया तो वो कहाँ रहता है, PW में रहता है, 1 0 हो गया तो वो कैप्चर में रहता है, 0 1 हो गया तो वो कंपेयर में रहता है। यहाँ क्या है 1 1 है, इसका मतलब ये PW में सेलेक्ट हो गई। और T2 कॉन की हमने 1 0 रखी है। हमने पहले देखा था कि
जो 10 है वो 16 प्रीस्केलर के लिए हम यूज़ करते हैं। और हमने यहाँ पीरियड में 61, हमको पीरियड कितना चाहिए, 61 का चाहिए। और हमें ड्यूटी साइकिल, अब जो ड्यूटी साइकिल है हमें 10% की चाहिए ना, तो यहाँ पे 6 उसके लिए यूज़ करना पड़ता है कि ये ड्यूटी साइकिल हमें 10% के लिए चाहिए और टोटल पीरियड हमें 61 का चाहिए। और हाँ, बाद में हम यहाँ क्या करेंगे, इंटर फ्लैग है उसको हमने सपोज रिसेट किया, यानी 0 0 रखा और टाइमर 0 है। अब सब, हाँ, टाइमर स्टार्ट हो गया, टाइमर स्टार्ट हो गया। जो ये वाइल में लिखा है ना, वो कब तक, अब ये वाइल में क्यों रखा है कि ये जो 1 है, 0 0 है, वो जब तक है तब तक ये चलेगा। और 1 आने के बाद ये इसके जो ब्रैकेट है उसके बाहर जाएगा, प्रोग्राम आउट ऑफ सर्किट बाहर जाएगा। 0 है तब तक चलेगा। इसका मतलब क्या है, 0 इसका मतलब देखो, टाइमर ऑन हो गया बट टाइमर फर्स्टली 6 आ गया, यानी टी ऑन का पीरियड हो गया, टी ऑन का पीरियड हो गया। तो टी ऑन हो गया, उसके बाद वो हाई हाई फर्स्टली CP1 जो है वो हाई पे था, 6 पे आने के बाद क्या वो नीचे आ गया, वो ऑन के बाद वो नीचे आ गया। तो वो जब तक 61 पे आता है तब तक वो नीचे से चला जाएगा। इसका मतलब बहुत कम ड्यूटी साइकिल, यानी बहुत कम ऑन टाइम है। अमोंग 61 only 6 count is used for that ड्यूटी साइकिल। सपोज यहाँ 6 काउंट आ गए तो क्या है, हाई से नीचे आ गया, वो नीचे आता है। और ये इंटरफ्लैग कब सेट होता है, आफ्टर द PR2, यानी 61 काउंट होने के बाद ये 1 हो जाता है और सर्किट के बाहर आता है और बाद में यहाँ पे जाता है। इसको फिर से ये 1 हो गया, इसको फिर से वो 0 करता है। इसका मतलब ये 0 हो गया तो हमारा जो टाइमर है फिर से 0 होता है, फिर से वो काउंट करता है और फिर से टाइमर ऑन हो गया, यानी फिर से वो 6 काउंट इज यूज फॉर दैट ड्यूटी साइकिल। थैंक यू।